سعيدين اليوم في وجودنا في دولة الإمارات العربية الشقيقة. نأكد العلاقة الراسخة والتاريخية بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية، سواء كان على مستوى القيادة على مستوى الشعوب. تاريخ بين البلدين كبير. اليوم في تاريخ 28 يناير 2021 بنبدأ تشغيل مبنى المسافرين الجديد في مملكة البحرين، تقريبا مبنى مطار كامل جديد. أول رحلة بتوجيه من صاحب السمو ولي العهد رئيس الوزراء الأمير سلمان بن حمد الخليفة، وجهنا تكون أن أول رحلة تطلع من المبنى المسافرين الجديد إلى الإمارات العربية المتحدة وإلى أبو ظبي. اليوم طبعا باستقبال وفد بحريني، وعلى رئاسة هذا الوفد وزير المواصلات والاتصالات البحريني، في مبادرة جميلة من مملكة البحرين بإرسال أول طائرة عن طريق توسعة المطار في البحرين، واللي شارك الصندوق في تمويل هذه التوسعة. هذا التمويل أتى ضمن صندوق دعم مملكة البحرين اللي التزمت فيه دول الخليج في عام 2012. هذا الصندوق كان عبارة عن تقديم $2,500,000,000 من دولة الإمارات لدعم مشاريع تنموية في مملكة البحرين. امتد هذا البرنامج على 5 سنوات، وهذا المطار أو توسعة المطار ضمن هذا البرنامج. نتمنى من هذه التوسعة أن تلعب دورا رئيسيا في دعم الاقتصاد الوطني البحريني. دنیا میں خاص مقام حاصل کر چکی ہے۔ میں آپ کو بحرین کے متعلق کچھ دلچسپ اور حیران کن معلومات سے آگاہ کروں گا جو آپ کے لیے دلچسپی اور سیر و تفریح کا باعث ہوں گی، لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں ان تمام نئے آنے والے دوستوں سے التماس کروں گا کہ سب سے پہلے یوٹیوب پر موجود ہمارے چینل تعبیر ٹی وی کو سبسکرائب کر کے بیل بٹن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا پیغام آپ کو بر وقت موصول ہوتا رہے۔ دوستو، بحرین خلیج فارس میں موجود 33 خوبصورت جزائر پر مشتمل ایک چھوٹا سا ملک ہے۔ بحرین کا مکمل اور سرکاری نام کنگڈم آف بحرین ہے، لیکن اس کو عمومی طور پر بحرین بھی کہا جاتا ہے۔ بحرین کے 33 جزائر میں سے صرف 10 ایسے جزائر ہیں جن پر انسانی آبادی رہائش پذیر ہے، اور باقی جزائر کو اب سیاحت کے لیے آباد کیا جا رہا ہے۔ بحرین کا مطلب ہے 2 سمندر، لیکن آج تک یہ بات واضح نہیں ہو سکی کہ کن 2 سمندروں کے حوالے سے اس کا نام بحرین رکھا گیا ہے۔ بحرین 15,69,446 افراد کی آبادی کے ساتھ پوری دنیا میں 149ویں نمبر پر آتا ہے۔ اس ملک کا کل رقبہ 778.3 مربع کلومیٹر ہے، جو اپنے رقبے کے لحاظ سے دنیا میں 172ویں درجے پر شمار کیا جاتا ہے۔ بحرین اپنی آبادی کے لحاظ سے ایشیا میں مالدیپ اور سنگاپور کے بعد تیسرا چھوٹا ملک ہے۔ منامہ شہر ملک کا دارالحکومت ہے، جس کا کل رقبہ 27 مربع کلومیٹر ہے، اور بحرین کی 3 لاکھ سے زائد آبادی اسی شہر میں رہائش پذیر ہے۔ منامہ ایک عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی لینڈ آف ڈریم یعنی خوابوں کا جزیرہ ہے۔ اگر بحرین کے محل وقوع کی بات کی جائے تو اس کے ہمسایہ ممالک میں قطر، سعودی عرب، ایران، کویت، UAE اور عمان ہے۔ بحرین سے سعودی عرب صرف 25 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ اس دوری کو کم کرنے کے لیے بحرین اور سعودی عرب کے درمیان شاہ فہد برج تعمیر کیا گیا ہے۔ ایسا ہی ایک برج قطر اور بحرین کے درمیان تعمیر کیا جانا تھا، جس پر باقاعدگی سے کام 2008 میں شروع ہونا تھا، لیکن بحرین اور قطر کے درمیان حالات کشیدہ ہونے کی وجہ سے اس پر عمل درآمد نہیں کیا جا سکا۔ نسلی اعتبار سے بحرین میں 50.7% عربی لوگ ہیں، جن میں 46% بحرینی اور باقی 4.7% ایسے لوگ ہیں جو بحرین میں اسلامی فتوحات کے بعد آ کر آباد ہوئے تھے۔ ان کے علاوہ 45.5% لوگ ساؤتھ ایشین ہیں، 1% یورپین اور 1.2% دیگر ممالک سے آئے ہوئے لوگ ہیں۔ ساؤتھ ایشین لوگوں میں سب سے زیادہ تعداد انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش سے آئے ہوئے لوگوں کی ہے۔ بحرین دنیا کی 4تھی سب سے گنجان آبادی رکھنے والی خود مختار ریاست ہے، جس کی آبادی کی کثافت 1646 افراد فی مربع کلومیٹر ہے۔ بحرین دنیا کا وہ واحد ملک ہے جس نے ملک کی خدمت کرنے والوں کو ملکی شہریت دے رکھی ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق 70,000 سے زائد پاکستانی بحرین میں مقیم ہیں، اور ان میں سے 30,000 کے قریب ایسے افراد ہیں جنہیں بحرین نے شہریت دے رکھی ہے۔ بحرین میں شہریت رکھنے والے ان لوگوں میں زیادہ تر وہ لوگ شامل ہیں جو یہاں پر 25 سال سے زیادہ عرصہ گزار چکے ہیں،
या फिर किसी सरकारी इदारे में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। पाकिस्तानी सूबा बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले कसीर तादाद में लोग बहरीन की सिक्योरिटी फोर्सेज में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। इन लोगों को बहरीन हुकूमत की तरफ से शहरियत भी दी जा चुकी है। इस्लाम बहरीन का सरकारी मजहब है। मुल्क में मुसलमानों की आबादी 81.2% है, क्रिश्चियन 10% और 9.8% हिंदू, सिख, यहूदी और दीगर छोटे छोटे मज़ाहब को मानने वाले मौजूद हैं। दोस्तों, बहरीन एक इस्लामी मुल्क होने के बावजूद यहाँ पर बेहयाई आम नज़र आती है, क्योंकि इस मुल्क में रहने वालों की अक्सरियत लिबरल सोच रखने वालों की है। यही वजह है कि यहाँ सऊदी अरब जैसे सख्त कवानीन नहीं हैं, बल्कि बहरीन में दुबई की तरह बेहयाई और फहाशी के अड्डे कायम हैं। यूं तो बहरीन में हसीन व जमील मसाजिद की कसीर तादाद मौजूद है और दूसरी तरफ फहाशी फराहम करने वाले क्लब्स और नाइट कसिनो भी आम हैं। अरबी मुल्क की सरकारी जुबान है, लेकिन अंग्रेजी जुबान भी मुल्क में बड़े पैमाने पर बोली जाती है, जबकि फारसी, उर्दू, तमिल, बांग्लादेशी और हिंदी दीगर सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जुबानों में शुमार होती हैं। मुल्क में तिजारती इदारों में और सड़कों पर लगे निशान अंग्रेजी और अरबी दोनों जुबानों में लिखे होते हैं। बहरीन में 14 साल की उम्र तक तालीम लाजमी करार दी गई है। सरकारी स्कूलों में बहरीन की शहरियत रखने वालों के लिए तालीम और निसाबी कुतुब की फराहमी मुफ्त की जाती है। यहाँ पर लड़कों और लड़कियों के लिए अलग अलग स्कूल बनाए गए हैं। बहरीन में तालीम की शरह 95.7% के करीब है। बहरीन में सेहत के हवाले से बेहतरीन निज़ाम मौजूद है। हुकूमत की तरफ से बहरीनी शहरियों को मुफ्त तिब्बी सहूलियात फराहम की जाती हैं। बहरीन में पहला अस्पताल 1893 में अमेरिका की तरफ से एक डिस्पेंसरी के तौर पर खोला गया था। बहरीन में उम्र की औसत शरह मर्दों के लिए 73 साल और औरतों के लिए 76 साल है। मुल्क में दीगर करीबी ममालिक की निस्बत एड्स और HIV का फैलाव बहुत कम है। बहरीन इस वक्त सेहत के हवाले से मोटापे की वबा का शिकार है। मुल्क की 28.9% मर्द आबादी मोटापे का शिकार है, जबकि औरतों में मोटापे की शरह 38.2% है। बहरीन में मौत की 32% वजूहात हार्ट अटैक है, जबकि दूसरे नंबर पर कैंसर की वजह से अमवात होती हैं। सियाहत को मुल्की मुआशत में अहम दर्जा हासिल है। 2017 में लगाए गए एक अंदाजे के मुताबिक 1 करोड़ से ज़ायद गैर मुल्की सियाहों ने बहरीन के सियाहती मकामात का सफ़र किया था। बहरीन अरब सकाफत और 5000 साल पुरानी तहजीब का घर है। मुल्क में मौजूद कल्लात किला वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में भी शामिल है। बहरीन नेशनल म्यूजियम में मौजूद नवादरात 9000 साल पुराने लोगों से मिलते हैं। मुल्क में दीगर सियाहती मकामात में अल हमीस मस्जिद, इर्द किला, बारबर का मंदिर, सार मंदिर और ट्री ऑफ लाइफ है। ट्री ऑफ लाइफ एक ऐसा दरख्त है जो बिना पानी के एक सहरा में 400 साल से मौजूद है। इस दरख्त को देखने के लिए हर साल लाखों लोग इस सहरा का रुख करते हैं। बहरीन न्यूज एजेंसी की तरफ से एक अंडर वाटर थीम पार्क बनाने का मंसूबा पेश किया गया है, जो तकरीबन 1 लाख मुरब्बा मीटर पर फैला पार्क होगा। ये थीम पार्क दुनिया का सबसे बड़ा अंडर वाटर थीम पार्क होगा। वॉल स्ट्रीट जर्नल की तरफ से शाये की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक बहरीन मगरबी एशिया और मशरक़ वस्ता के ममालिक में सबसे बेहतर तरक्की करने वाला मुल्क है। मुल्की तरक्की में अहम और सबसे ज़्यादा किरदार पेट्रोलियम पैदावार और प्रोसेसिंग मसनूआत की एक्सपोर्ट है, जो मुल्की GDP में 60% तक हिस्सादार समझी जाती है। मुल्की दरामदात में खाने की अशिया खास तौर पर गोश्त और फल काबिले जिक्र हैं। बहरीन की बहुत थोड़ी ज़मीन काबिले काश्त है, लेकिन ज़री ज़मीन इंतहाई ज़रखेज़ मानी जाती है, जिसमें कुछ अक़साम के फल और चावल बकसरत पैदा होते हैं। बहरीन की कुल GDP 75.174 बिलियन $, है, जो GDP के लिहाज से दुनिया में 95 नंबर पर आती है। बहरीन की करेंसी बहरीनी देनार है। एक बहरीनी देनार पाकिस्तानी 414.20 रुपयों के बराबर है। इंडियन करेंसी में 190.19 इंडियन रुपए और बांग्लादेशी करेंसी में 224.99 टका बनते हैं। बहरीन की करेंसी कुवैत के बाद दुनिया में दूसरी मजबूत तरीन करेंसी शुमार होती है। बहरीन का सबसे ज्यादा और मकबूल तरीन खेल फुटबॉल है।
बहरीन की कौमी टीम फीफा वर्ल्ड कप में भी हिस्सा ले चुकी है। मुल्क की दीगर मकबूल खेलों में बास्केटबॉल, रग्बी यूनियन, हॉर्स रेसिंग, मार्शल आर्ट, क्रिकेट, साइकिलिंग और मोटर रेस शामिल है। बहरीन एक इस्लामी मुल्क होने की वजह से मुल्क में इस्लामी रस्म व रिवाज पाया जाता है, लेकिन काफ़ी हद तक मगरबी रंग भी नज़र आता है। यहाँ पर औरतों के लिबास में हिजाब और अबाया शामिल है, जबकि मर्दाना लिबास में कैफिया, गोत्रा और सर पर एक ईगल जैसा रवायती हेड ड्रेस शामिल है। बहरीन ने 1976 में हम जिन्स परस्ती को कानूनी हैसियत दी थी, लेकिन बाद में बहुत सारे ऐसे अफराद को गिरफ्तार भी किया गया जो हम जिन्स परस्ती में मुलव्विस थे। BIA मुल्क का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है, जहां से मुल्की और बैनुल अक़वामी परवाजें चलाई जाती हैं। मुल्क में पुख्ता और बेहतरीन हाईवेज मौजूद हैं जो आने जाने वाले मुसाफिरों को बेहतरीन सफ़र से आरास्ता करती हैं। बहरीन की मीना सुलेमान बंदरगाह मुल्क में मरकजी बंदरगाह की हैसियत रखती है। बहरीन की जंगली हयात में 330 अक़साम के परिंदे, जिनमें 26 ऐसी नस्लें हैं जो बुनियादी तौर पर बहरीन से ताल्लुक़ रखती हैं। बहरीन में सिर्फ 18 अक़साम के ऐसे जानवर हैं जो दूध देते हैं। तितलियों की 121 अक़साम और पौधों की 307 अक़साम मौजूद हैं। बहरीन का कौमी जानवर अरेबियन ओरियक्स है। बुलबुल कौमी परिंदा और खजूर कौमी दरख्त है। बहरीन वक्त के लिहाज से पाकिस्तान से 2 घंटे पीछे है। मुल्क का कॉलिंग कोड +973 और डोमेन नेम .bh है। पाकिस्तान और बहरीन के दरमियान फासला 1898 किलोमीटर है। अगर आप पाकिस्तान से बाई एयर सफ़र करते हैं तो आपको 3 से 4 घंटे लग सकते हैं। दोस्तों, अगर आप वीज़ा के मुतालिक कोई भी किसी भी मुल्क के बारे में मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो हमारी डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके आप मुफीद मालूमात हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, ये थी बहरीन के बारे में एक खूबसूरत और दिलचस्पी से भरपूर प्यारी सी वीडियो। मुझे यकीन है कि आपको मेरी ये काविश ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें और मेरी हौसला अफजाई के लिए कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती आरा से ज़रूर नवाजा करें। मेरी और आपकी मुलाकात होगी ऐसी ही किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अपने ये बहरीन की सबसे बड़ी बिल्डिंग है, बहरीन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, किंगडम ऑफ बहरीन। क्या ज़बरदस्त व्यू है। असरार साहब किधर जा रहे हैं हम लोग? हम जा रहे हैं एयरपोर्ट। एयरपोर्ट में हमारा दोस्त आ रहा है आज पाकिस्तान से, उसको लेने के लिए जा रहे हैं। ये बहरीन है, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ज़्यादा काम है बहरीन में। अगर किसी ने आना हो, 1 दिनार 500 का हो गया तकरीबन। 10 दिनार मिलते हैं जो लेबर का काम करते हैं ना, तो समझ लें 10 दिनार मिलते तो 5000 रुपया 1 दिन का बनता है पाकिस्तान का। अगर किसी ने आना है, मोस्ट वेलकम बहरीन में। क्यों सरार साहब? ये डिप्लोमेट एरिया है बहरीन का, इसका नाम है, सिटी का है डिप्लोमेट एरिया। ये अभी सिगलन बंद है। नज़ारे बहरीन के जी बहुत ज़बरदस्त नज़ारे हैं। क्या गाड़ियाँ इधर, लैंड क्रूज़र, प्राडो, ये हमारी भी लैंड क्रूज़र है, बस मॉडल पुराना है। ये जा रहा है रास्ता एयरपोर्ट को जी, महारक। इधर पाकिस्तानी एम्बेसी आएगी, वो भी आपको दिखाते हैं।